So here is the summary about what we have discussed so far and where we are at the moment. I mean, standing as per our knowledge based on this subject. So first of all, we talked about the earthquakes. What are the earthquakes and how they are triggered and what are the different causes and then what type of earthquake hazards are. So the basic things we talked about, and then we talked about what type of ground motion is produced, right, during an earthquake, and what are the different parameters those we can use to define the ground motion. So we talked about acceleration, velocity, displacement, the amplitude parameters. Then we talked about the frequency content parameters. Then we talked about the response spectra, Fourier spectra of the ground motion. And then we talked about the seismic hazard. That is actually how you are going to find out or estimate the hazard associated with a particular earthquake in a particular region. So then we talked about the predictive relationships, and then we talked about the effect of magnitude and distance on the damage, and then we talked about deterministic seismic hazard analysis, then probabilistic seismic hazard analysis, and we didn't talk about the wave propagation of the earthquake waves. I mean the mechanism or the mechanical aspect of that earthquake wave propagation, because that was out of the scope of this subject. Anyhow, we talked about the waves propagate in the subsurface and reach at the site. So now this is actually the site where we have different type of layers of the soils, or if it is rock then that's fine, and then we have a kind of structures, right? Those are going to be built at some place. So now we need to understand what is the site conditions, and those how those are going to affect the earthquake ground motion, right? So we will talk about the local site effects and the ground and the building codes. There are some other chapters of this book like dynamic soil properties, ground response. So these are out of this syllabus. So maybe the engineering students, especially the civil engineers, they can better understand these chapters of this book, and you know the properties of the ground. You can say the material is very important, that affect the storm ground motion at the local site. So somebody can understand these things if he has or she has an engineering background. So anyhow, these things are already given in the book. You are very welcome to discuss those things with me, but these are the chapter 6 or 7. These are not the part of our course, right? So we are just talking about the chapter 8 of your textbook, where we are going to talk about very briefly the what are how the different type of materials affect locally the storm ground motion at a particular site, and then we will talk about the building codes. So first of all, the local site effects. So local site effects are associated with different type of materials. Those are present at the site. We have already talked about this figure, and according to this figure you can see that there are number of earthquake histories available, and the ground motion is recorded on different type of materials, right? So over here you can see that there are four type of records. Those are given, and their spectral acceleration is drawn with respect to its frequency in this figure. And you see that for the soft to medium clay and sand there are 15 records, and for deep cohesive soils greater than 250 feet in in thickness there are 30 records, and for stiff soils there are
31 records, and then definitely there are the records, those are based on the rocky material. So these are different type of materials, and wherever these materials are present, they affect as per their properties or as per their shear strength. So over here you see that, first of all, let's talk. We already discussed this thing, I guess, in some of the lectures before, but let's revise it because this is related to the local site effects. So let's suppose, first of all, we will see that the spectral acceleration or the response spectra based on the spectral acceleration for the rocks. So where the ground motion is recorded over the rock. So you see that this is the peak, right? This is the peak, and you see that this is the spectra, right? This is the trend line. You see that, and then we got this stiff soil. This stiff soil, this stiff soil has this peak. Yeah, I guess this peak. So you see that the stiff soil spectra is going this way, and it is slightly above the rocky material. All right. Now, if you talk about the deep cohonylous soils, then you have this peak. You see that this is the peak, and it has little hump over here and going down this way. All right. So then for the soft to medium clay and sand. So this is very important thing. Soft to medium clay sand. There is no well-defined peak, but you can see here no well-defined peak, but the curve is more flat, right? So now I can ask a question to you. Uh, in what situation the damage will be more, and the ground motion will be more dangerous to the buildings? So this is the question. So if you see that if there is rock, you know, then you see that the duration, what is the duration of a strong ground motion? Let's suppose this is the threshold. For example, this is the threshold. I mean, below this, the ground motion amplitude is not strong. Let's suppose. I mean, this much ground motion below this is, let's suppose, it's not very significant. But so what happened over here? So let's compute the duration of the significant ground motion. So over here, let's suppose compute over here. So what is the duration? Maybe less than few seconds. I mean, right? And then if you go to the other, then you see that, I mean, for the stiff soil, the duration is more. Then for the cohonylous soil, even the duration is more. And if you go all the way down over here, then you see that if the material is soft to medium clay and sand, then the duration of the strong ground motion will be more. It means the where the strong ground motion duration is more, the more that kind of site will be having the more tendency to produce the damage, right? Even though the peak amplitude is lesser than as compared to the rock. अगर आप यहाँ पे ये देखें कि जो पीक ग्राउंड मोशन है जो रॉक में प्रोड्यूस हो रही है और ये जो आपकी स्टिफ सॉइल, ये जो आपकी सॉफ्ट सॉइल में प्रोड्यूस हो रही है, इसके अंदर ये डिफरेंस है. लेकिन क्योंकि ये शॉर्ट पीरियड की वेव है, तो इसलिए इसको कम टाइम मिला डैमेज प्रोड्यूस करने के लिए, राइट, एज कंपेयर टू दी सॉफ्ट सॉइल्स. तो इस ग्राफ से ये चीज शो होती है कि जो सॉफ्ट सॉइल्स होती हैं, लूज सॉइल्स होती हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक डैमेज ज़्यादा प्रोड्यूस होता है. वहाँ पे भी वेव्स एम्पलीफाई होती हैं, वेव्स एंट्रैप हो जाती हैं उस सब सरफेस मटेरियल, लूज मटेरियल के अंदर, और डेफॉर्मेशन कॉज करती है. वो जो डेफॉर्मेशन जब सॉइल में होती है, तो वही डेफॉर्मेशन जो है वो इफेक्ट करती है बिल्डिंग की फाउंडेशंस को, और बिल्डिंग के अंदर डिफरेंशियल सेटलमेंट होती है, और बिल्डिंग जो है वो कोलैप्स भी कर सकती है. ठीक है, तो ये लोकल साइट इफेक्ट्स हैं. उसी एक पर्टिकुलर जगह के ऊपर अगर आपके पास रॉक है,
तो रॉक के ऊपर जो स्ट्रक्चर होगा उसको डैमेज कम प्रोड्यूस होगा, और जो सॉइल के ऊपर स्ट्रक्चर होगा उसी जगह पे वहां पे डैमेज है वो ज्यादा प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये इस तरह की चीज हमने पहले भी थोड़ी सी डिस्कस की थी। ऑलराइट, सो लेट्स टेक एन एग्जांपल। कि यहाँ पे आपके पास जो है वो एक एग्जांपल है कैलिफोर्निया के एक एरिया की। वहाँ पे एक अर्थक्वेक था 1989 का, लोमा प्रेटा अर्थक्वेक 7.1 मैग्नीट्यूड। और वी ऑलरेडी टॉक अबाउट कि वहाँ पे दो आइलैंड्स हैं। एक आइलैंड जो है जिसे कहते हैं यरबा ब्योना आइलैंड, जो कि आपका रॉक के ऊपर है, और एक है ट्रेयर आइलैंड। ट्रेयर आइलैंड जो है उसकी जो फाउंडेशन है या जो वहाँ पे जो मटीरियल है वो सॉइल है। ठीक है, वो सॉइल है, उसमें सैंड और क्ले मिक्स है। ठीक हो गया। तो वहां पे ये अर्थक्वेक की रिकॉर्डिंग गिवन है। एक्सेलरेशन जो था वो रिकॉर्ड हुआ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपके पास एक्सेलरेशन जो है वो ये रिकॉर्ड हुआ, और इसकी आप देख सकते हैं एम्पलीट्यूड। ठीक है, और यहाँ पे देखें ट्रेयर आइलैंड, ये एक ही अर्थक्वेक सोर्स से ये रिकॉर्डिंग हुई है दो मुख्तलिफ मटीरियल्स के ऊपर। ये साइड इफेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे हैं। तो इसमें ये देखेंगे अर्थक्वेक से एपिसेंटर डिस्टेंस भी तकरीबन सेम था, लेकिन क्या है कि आपके पास जो रिकॉर्ड है रॉक के ऊपर, उसकी एम्पलीट्यूड देख लें, उसकी ड्यूरेशन देख लें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की, बहुत कम मिलेगी आपको ये ड्यूरेशन, राइट, ये इतनी सी ड्यूरेशन है। लेकिन जब आप ट्रेयर आइलैंड पे उसी ग्राउंड मोशन को उसी डिस्टेंस पे मेजर करते हैं तो आपके पास जो है वो एक तो एम्पलीट्यूड बढ़ जाती है, और दूसरी बात है कि उसकी ड्यूरेशन भी बढ़ जाती है। ठीक है, तो दिस इज द रीजन वाई कि जो लोकल साइट जो कंडीशंस हैं वो भी अफेक्ट करती हैं स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन के ऊपर। और ये आपके पास स्पेक्ट्रल जो है वो क्या कहते हैं उसे, एक्सेलरेशन जो है वो, जैसे हमने रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा डिस्कस किया था सिंगल डिग्री ऑफ फ्रीडम सिस्टम और दूसरे मटेरियल्स के लिए, तो वहाँ पे उसी तरह से आप रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम जो है वो सॉइल्स का भी निकाल सकते हैं। अब ये देखें यहाँ पे यरबा ब्योना आइलैंड का जो रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रा है वो बहुत ही छोटा है। ठीक है, अब इसमें देखेंगे इसका मतलब, क्योंकि ये रॉक के ऊपर है। ट्रेयर आइलैंड में देखें पीक कहाँ पे चली गई, उसके अलावा यहाँ पे ये कर्व भी ज्यादा फ्लैट है, इसमें स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन की ड्यूरेशन भी ज्यादा है। ठीक है, सो इट मीन्स के जो ट्रेयर आइलैंड है वहाँ पे जो स्ट्रक्चर्स थे उनको ज्यादा डैमेज जो था वो एक्सपेक्टेड था कि उसको हो। और इसी तरह से जैसे 1906 में सैन फ्रांसिस्को में जो अर्थक्वेक आया था, तो क्योंकि जो पूरा सैन फ्रांसिस्को वैली है वो सॉफ्ट सॉइल्स पे जो थी वो कंपोज करती थी, इसलिए वो पूरे का पूरा जो सिटी था वो डिस्ट्रॉय हो गया था, राइट। तो ये एविडेंसेस हैं जो ये शो करते हैं कि जो भी स्ट्रक्चर्स लूज सॉइल के ऊपर होंगे जो वहाँ पे डैमेज ज़्यादा प्रोड्यूस हुआ, क्योंकि वहाँ पे ग्राउंड एम्पलीफिकेशन होती है, जो ग्राउंड मोशन है वो एम्पलीफाई हो जाती है, उसकी एम्पलीट्यूड ज़्यादा हो जाती है, डिस्प्लेसमेंट ज़्यादा प्रोड्यूस होता है एज कम्पेयर टू रॉक, क्योंकि रॉक की शेयर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा होती है, उसमें डेफॉर्मेशन कम आती है और जो वेव्स हैं क्विकली वहाँ से पास कर जाती है। ठीक है, so now let's take a real time example how we are going to design a project based on the seismicity of a particular area. ठीक है, so let's take the example कि ये आपके पास है वुडरो विल्सन ब्रिज वाशिंगटन डीसी। ठीक है, और यहाँ पे आपने क्या किया कि साइट रिस्पॉन्स एनालिसिस किया, साइट रिस्पॉन्स एनालिसिस किया ग्राउंड मोशन का, कि जो ब्रिज है वो किस तरह से मूव करेगा अगर वो वहाँ पे, ये डिज़ाइन से पहले की, मतलब जब डिज़ाइन हो रहा था उस वक्त की ये सिचुएशन है। ठीक है, तो उस वक्त उन्होंने साइट रिस्पॉन्स एनालिसिस परफॉर्म किया। बेस्ड ऑन दैट आइडिया ये लेना था कि जो डिफरेंट कंपोनेंट हैं इस ब्रिज के वो किस तरीके से रिस्पॉन्ड करेंगे। जनरली तो आप ये कह सकते हैं कि यहाँ पे जो आपके पास क्या कहते हैं उसे, कि एक पर्टिकुलर एरिया है, वहाँ पे आप इसको किसी एक ग्राउंड मोशन जो एक्सेलरेशन है उसकी वैल्यू के ऊपर आप इसको डिज़ाइन करेंगे, और पूरा स्ट्रक्चर जो है उसका डिज़ाइन एक जैसा होगा। बट दिस इज़ नॉट द केस, कि ये जो डिज़ाइन है स्ट्रक्चर का ये एक जैसा नहीं है, इसमें डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो डिफरेंटली डिज़ाइन किए गए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि उनकी उनकी फाउंडेशन कहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल अगर फाउंडेशन पानी के अंदर है तो पानी के नीचे कौन सा मटीरियल है, वहाँ पे जो ब्रिज है वो डिफरेंटली बिहेव करेगा। उसके बाद जहाँ पे आपके पास मतलब यहाँ पे इस एरिया में डिफरेंटली बिहेव करेगा, यहाँ पे वो डिफरेंटली बिहेव करेगा, क्योंकि यहाँ पे सॉइल है या रॉक है वो डिपेंड करता है कि नीचे क्या है, फिर यहाँ पे मटेरियल कौन सा। इट मीन्स कि हमें यहाँ पे
ड्रिलिंग करके ये पता करना पड़ेगा कि नीचे कौन सा मटेरियल है और वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेगा। ठीक है, तो ये इसका क्रॉस सेक्शन है उसी ब्रिज का, कि यहाँ पे देखेंगे ये वाला जो हिस्सा है ये तो सारा पानी के अंदर है। ठीक है, ये सारा आपका क्या है, वाटर के अंदर है। ठीक है, और यहाँ पे भी आपके पास नीचे जो कुछ एरिया शैलो वाटर है, यहाँ पे ये भी पानी, ये भी आपका जो है वो सब सरफेस है, थोड़ा सा पानी में, यहाँ पे भी वाटर है। ठीक है, उसके बाद आपका जो स्ट्रक्चर है वो आगे यहाँ पे एक्सटेंड कर रहा है। ये मतलब आपका ड्राई जो है ना आपके पास जो लैंड है उसकी तरफ एक्सटेंड कर रहा है। ऑल राइट, इफ यू सी द सब सरफेस जियोलॉजी, आप ये देखेंगे जहाँ पे वाटर है, ठीक है, वहां पे ये सारी क्या है, सॉफ्ट क्ले है। ठीक है, हमने अभी डिस्कस किया है कि सॉफ्ट क्ले जो है वो किस तरह से डैमेज प्रोड्यूस कर सकती है, किस तरह से ग्राउंड मोशन को एम्पलीफाई कर सकती है। ठीक है, तो ये वाला जो पूरा हिस्सा है आपका, ये सारे का सारा सॉफ्ट क्ले के ऊपर है। ये देखिए, ये सारा आपका जो इसकी जो फाउंडेशन है वो सॉफ्ट क्ले पे होनी है। ठीक हो गया, उसके बाद आपके पास इधर क्या है, आपके पास सिल्टी सैंड है, फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे फिर सैंड्स है, डेपोजिशन है, फिर यहाँ पे नीचे है क्रिटेशियस क्लेज। ठीक हो गया, ये आपके पास इस तरफ इसकी लिथोलॉजी है। उसके बाद यहाँ पे चले जाएं तो यही वाली जो सिल्टी सैंड्स है वो यहाँ पे भी एक्सटेंड कर रही हैं। ठीक है, तो इट मीन्स कि लिथोलॉजी आपकी यहाँ पे डिफरेंट है। तो उसके बाद सेम ग्राउंड मोशन, सिमिलर, लेट्स सपोज कि वो 30G 0.30G ग्राउंड एक्सेलरेशन है जिसके ऊपर आपने इसको डिजाइन करना है। ठीक है, तो फिर क्या होगा, तो अगर वो बिल्डिंग को आप शेक करें, ब्रिज को शेक करें, आप ये देखेंगे इस एरिया में, ये जो एरिया देखिए FG1 और FG2 जो है, ये साइड्स के ऊपर अगर आप साइड रिस्पॉन्स एनालिसिस करें तो आपके पास ये वाला रिस्पॉन्स आएगा सॉइल का। यहाँ पे जनरली क्या है कि यहाँ पे सिल्टी सैंड्स, प्लेस्टोसीन सैंड्स, ये जो है थोड़ी सी कॉम्पैक्ट है। तो यहाँ पे आप देखें कि वो कंपैक्शन की वजह से वहाँ पे जो है ना वो एम्पलीफिकेशन तो है, लेकिन क्या है कि ड्यूरेशन जो है ग्राउंड मोशन की वो बहुत कम है। ठीक है, इट मीन्स कि ये वाला जो स्ट्रक्चर इस जगह पे होगा, वहाँ पे हमें बहुत ज़्यादा जो है वो वरी होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे जो है स्ट्रेटा है, जो सॉइल है वो ज़्यादा बेहतर है, स्ट्रॉन्ग है। जब आप यहाँ पे जाते हैं, ये सारी वाटर बॉडी FG3 के ऊपर, तो यहाँ पे क्या सिचुएशन है, आप ये देखिए, वही ग्राउंड मोशन जो है उसकी उसकी पीक कम है लेकिन ड्यूरेशन बढ़ रही है। आप ये देखिए, यहाँ पे ड्यूरेशन जो है वो ज़्यादा हो रही है। सिमिलरली आप यहाँ पे चले जाएं तो यहाँ पे भी वही सिचुएशन है कि सॉफ्ट सॉइल है। फिर आप यहाँ पे चले जाते हैं तो यहाँ पे जो है ना वो आपके पास जो है वो सिचुएशन ये है। ठीक है, यहाँ पे भी नीचे सॉफ्ट सॉइल है लेकिन इसकी थिकनेस कम है। यहाँ पे जो थिकनेस है वो बहुत ज़्यादा है, ये देखिए। तो जितनी थिकनेस होगी किसी भी पर्टिकुलर डिपॉजिट की, वो भी एक रोल प्ले करती है। ठीक हो गया, तो यहाँ पे जो है ना वो फिर आपको एक पीक सी नजर आ रही है, ड्यूरेशन थोड़ी सी कम हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पे भी नीचे स्टिफ सॉइल है लेकिन सॉफ्ट सॉइल है, लेकिन नीचे जो वो उसकी थिकनेस कम है। ठीक है, तो जब आप ब्रिज की फाउंडेशन लेंगे तो लेट्स सपोज यहाँ पे जब आप जो है ना वो फाइल्स करेंगे तो फाइल यहाँ तक आ जाएगी। ठीक है, आपने सॉफ्ट सॉइल को यहाँ पे क्रॉस कर दिया, लेकिन जब यहाँ पे जब आप पाइलिंग करेंगे तो हो सकता है सॉफ्ट सॉइल को आप क्रॉस ना करें, तो सॉफ्ट सॉइल के अंदर ही आपको फाउंडेशन रखनी पड़े। ठीक है, या यहाँ पे डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन की ये कितनी डेप्थ है। ठीक है, वरना सॉफ्ट सॉइल को क्रॉस करके आप यहाँ पे आए तो ज्यादा बेहतर है, जो कि ज्यादा बेहतर, जिसकी बेयरिंग कैपेसिटी ज्यादा बेहतर है। ठीक है, जिस स्ट्रेटा की। बट एनी हाउ, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आपका स्ट्रक्चर एक है लेकिन उसकी जो फाउंडेशन है वो डिफरेंट मटेरियल्स के ऊपर है। So it means the different components of that particular same structure will behave differently, will move differently, I mean against the same earthquake loading, against the same ground motion, right? So it means we need to design those components accordingly. कि यहाँ पे जो आपके पास डिजाइन होगा, जो नीचे कंक्रीटिंग आप करेंगे, फाउंडेशन का डिजाइन होगा वो डिफरेंट होगा एज कंपेयर टू दिस सेक्शन। इट मीन्स कि आप जब इस यहाँ पे स्ट्रक्चर को डिजाइन करेंगे तो आप साइट की कंडीशन के हिसाब से उसकी स्ट्रक्चर की स्ट्रेंथ रखेंगे, स्ट्रक्चर के जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हैं उनको आपस में
आप उसकी ज्वाइनिंग करेंगे, आप उसके जो कंक्रीट है या रीबार उसमें यूज करेंगे, उसकी कितनी क्वांटिटी यूज करनी है वो आप ये देखेंगे कि नीचे सॉइल की कंडीशन क्या है। सॉइल की कंडीशन के हिसाब से डिजाइन जो है एक ही स्ट्रक्चर का उसके डिफरेंट कंपोनेंट्स का विद रिस्पेक्ट टू द लोकेशन वो डिफरेंट होगा, ठीक है, उसमें डिफरेंट टाइप की रीइंफोर्समेंट यूज होगी। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो कि शो करती है कि लोकल साइट कंडीशंस आर वेरी इंपॉर्टेंट, और लोकल साइट कंडीशंस की बेस के ऊपर फिर आप फर्दर जो आपका जो डिजाइन है उसको आप इंप्रूव करते हैं, राइट। All right, so this was we are talking about the local site conditions, and in local site conditions, if the area is hilly, right? तो जो हिली एरिया है वहां पे भी जो ग्राउंड मोशन है उसका जो रिस्पॉन्स है वो डिफरेंट लोकेशंस के ऊपर हिली एरिया में वो डिफरेंट होगा, राइट। सो उसकी एग्जांपल अब यहाँ पे ये देख रहे हैं कि क्योंकि वहाँ पे माउंटेन्स होती हैं, माउंटेन्स हैं, फिर उसके बाद वैलीज भी हैं, फ्लैट एरियाज भी आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, लेट्स सपोज कि ये अब नीचे से ग्राउंड मोशन आती है, ये देखिए ये आपके पास क्या है, ग्राउंड मोशन नीचे से आ रही है, अर्थक्वेक मोशन है। तो उसने क्या करना है, ये आपके पास किसी भी एरिया में ट्रफ है, ठीक है, ये ट्रफ है। तो ट्रफ में क्या होगा कि ग्राउंड मोशन यहाँ जब आ गई तो यहाँ पे ग्राउंड मोशन क्या करेगी, वाइब्रेशंस प्रोड्यूस करेगी, मतलब ग्राउंड जो है वो इस तरीके से वाइब्रेट करेगा, ठीक है, ग्राउंड मोशन प्रोड्यूस होगी, ठीक हो गया, ग्राउंड शेक करेगा। सिमिलरली इफ यू हैव मतलब इसी के बराबर वहां पे माउंटेन भी है। अब माउंटेन की ये वाली जो बेस है वो इसके यहाँ इसके इक्विवेलेंट है, ठीक है। लेकिन ये जो ग्राउंड मोशन यहाँ पे खत्म हो जाएगी, ग्राउंड क्योंकि ग्राउंड मूव करेगा तो यहाँ पे वो खत्म होगी, लेकिन यहाँ पे वो खत्म नहीं हुई, यहाँ पे वो माउंटेन के अंदर गई है, ये देखिए ये अंदर गई है, और अंदर क्या करेगी, माउंटेन शेक करेगी। माउंटेन के अंदर क्या होगा, शेकिंग होगी, माउंटेन इस तरीके से वो मूव करेंगे हॉरिजॉन्टली, ठीक है, इसके कंपोनेंट्स आगे पीछे जाएंगे, मतलब इस तरीके से आगे पीछे वो मूव करेंगे, ठीक है, और इस तरह से शेकिंग होगी, ऊपर की तरफ जाएगी। अब यहाँ पे ये ग्राउंड शेकिंग क्यों हो रही है, ग्राउंड शेकिंग इसलिए हो रही है कि यहाँ पे ये सारा एम्प्टी है, ये वाला एरिया सारा क्या है, ये एम्प्टी है, यहाँ पे कोई कन्फाइनमेंट नहीं है, ये एक पीक है लेट्स सपोज। तो यहाँ पे सारी आपके पास क्योंकि वैक्यूम है तो यहाँ पे क्या होगा कि मूवमेंट ज्यादा होगी, ये शेकिंग जो है वो ऊपर ज्यादा होगी एज कंपेयर टू दी फ्लैट ग्राउंड। ये चीज आपने याद रखनी है कि जो ऊपर जो आपके पास शेकिंग होगी, माउंटेन्स की जो टॉप एरियाज होंगी, हिल्स होंगी, वहां पे शेकिंग ज्यादा होगी एज कंपेयर टू द फ्लैट एरिया, और एज कंपेयर टू द फुट हिल ऑफ दैट माउंटेन। रीजन क्या है, क्योंकि ग्राउंड नीचे कन्फाइनमेंट होती है, कन्फाइनमेंट की वजह से ग्राउंड जो है वो कम मूव करता है एज कंपेयर टू द पीक ऑफ अ माउंटेन। इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर हमने डिस्कस किया था। लेट्स सपोज हमारे पास एक हाई राइज बिल्डिंग है, ठीक है, जो एक हाई राइज बिल्डिंग है उसकी एक फाउंडेशन है, ठीक है, तो फाउंडेशन के पास जो एरिया होगा आपका, ठीक है, ये सारी फाउंडेशन है, तो ये यहाँ पे क्या है, ये सारी कन्फाइनमेंट है, ठीक हो गया, ये आपके पास सारी क्या है, कन्फाइनमेंट है। वो कन्फाइनमेंट क्या करेगी, बिल्डिंग की फाउंडेशन को जो है ना वो रोकेगी, मूव नहीं करेगी, क्योंकि इधर भी कन्फाइनमेंट है इधर भी कन्फाइनमेंट है। तो ग्राउंड जो जो बिल्डिंग की फाउंडेशन है उसकी हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कम होगी एज कंपेयर टू, क्योंकि वो जो सिग्नल है वो आपका बिल्डिंग में भी जाएगा। ये जो सिग्नल अर्थक्वेक का वो आपका एयर में नहीं जा सकता, क्योंकि एयर की शेकिंग तो नहीं होती ना, यहाँ तो सिग्नल नहीं जाएगा, ठीक है, यहाँ पे तो इधर ही खत्म हो जाएगा, ठीक है। लेकिन जब बिल्डिंग के अंदर सिग्नल जाएगा, क्योंकि बिल्डिंग सॉलिड मटेरियल है, तो जब ये बिल्डिंग ने क्योंकि अब क्या करना है, सिग्नल जाएगा तो शेकिंग प्रोड्यूस हो रही है। अब शेकिंग में क्या होगा कि ग्राउंड जो है वो ये बिल्डिंग मूव करेगी ऐसे, ठीक है, और ये बिल्डिंग आपकी इधर भी मूव करेगी, ठीक हो गया। तो ये चीज हमने डिस्कस की हुई कि जो बिल्डिंग के जो टॉप फ्लोर्स होते हैं वो ज्यादा शेकिंग फील करते हैं एज कंपेयर टू द लोअर फ्लोर्स। उसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि नीचे तो कन्फाइनमेंट होगी, आपके हर तरफ सॉइल है, तो फाउंडेशन तो कम मूव करेगी ना, लेकिन ऊपर आपके पास सॉइल नहीं है,
तो दिस इज द रीजन मैं आपका एयर है, एयर में बिल्डिंग को फ्री टाइम मिलेगा, फ्री स्पेस मिलेगी, तो वो यहाँ पे शेकिंग प्रोड्यूस हो वहाँ पे, ठीक है, ये इस तरह से डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस होगा। सिमिलर जो रूल है दैट विल बी अप्लाइड ऑन दी माउंटेन्स। माउंटेन्स में भी क्या होगा कि जो फ्लैट एरियाज हैं वहां पे जो एम्प्लीफिकेशन है ग्राउंड मोशन की वो कम होगी एज कंपेयर टू दी टॉप ऑफ द माउंटेन। जैसे जैसे हाइट माउंटेन की बढ़ती है वो एम्प्लीफिकेशन जो है वो फैक्टर बढ़ता जाएगा, क्योंकि जो एम्प्लीफिकेशन क्यों, मतलब क्योंकि लेट्स सपोज ये टॉप है, तो यहाँ पे देखेंगे आपकी बिल्डिंग की माउंटेन की विड्थ बहुत कम है, इट मीन्स के वेट बहुत कम है, तो ये ज्यादा शेक होगा पार्ट एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है। यहाँ पे इसकी जो है वो काफी ज्यादा थिकनेस है, तो ये वाला जो पार्ट है ये थोड़ा कम शेक होगा एज कंपेयर टू दिस वन, ठीक है, ये टिप्स। इसी तरह से जब आप बेस पे जाते हैं तो बेस पे ये जो ग्राउंड है, ग्राउंड मोशन जो है वो फुट हिल के ऊपर वो मतलब बहुत कम होगी एज कंपेयर टू दीज सेगमेंट्स के, उसके डिफरेंट हाइट के ऊपर माउंटेन के ऊपर जो जो आपकी ग्राउंड मूवमेंट है वो बढ़ती जाएगी, ऊपर जितना जाएंगे आप हाइट पे वो बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो ये ग्राउंड जो मोशन है ये कितनी, इसको कहते हैं टोपोग्राफिकल इफेक्ट। ये टोपोग्राफी है, टोपोग्राफी मीन जो आपके पास जो डिफरेंट फीचर्स हैं जो कि आपके अवेलेबल है डिफरेंट क्या कहते हैं उसे क्या कहते हैं उसे कि वहाँ पे माउंटेन्स एरिया में एलिवेटेड स्ट्रक्चर जो गिवन हैं, जो अवेलेबल हैं, ऑलरेडी प्रेजेंट हैं, वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करेंगे, वो नेचुरल फीचर्स हैं, इसको टोपोग्राफिक फीचर्स भी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे इसकी एक्सप्लेनेशन गिवन है कि फॉर अ ट्राइंगुलर इन्फिनिट वेज सब्जेक्टेड टू वर्टिकल प्रोपगेटिंग शियर वेव, हॉरिजॉन्टल वेव, ये वेव ऊपर जाएगी तो बिल्डिंग को ऐसे शेक करेगी, मतलब हॉरिजॉन्टली शेकिंग, हॉरिजॉन्टल शेकिंग होगी, ये वेव ऐसे जाएगी ऊपर, ठीक है, और बिल्डिंग जो है वो भी उसी तरह से अकॉर्डिंगली ऐसे मूव करेगी, ठीक है, हॉरिजॉन्टल शेकिंग। वो कह रहा है कि अगर अगर आपके पास वेज टाइप माउंटेन है तो ट्राइंगुलर टाइप, तो ऐसे वेव जो है वो क्या करेगी, ऊपर जाएगी, तो क्या होगा, एपेक्स डिस्प्लेसमेंट आर एम्प्लीफाइड बाय अ फैक्टर, कि जो आपके जो ऊपर वाले जो एरियाज हैं वो एम्प्लीफाई हो जाएंगे 2/φ फार्मूला के मुताबिक। फाई क्या है, फाई एक्चुअली एंगल है कि इस जगह पे जो है ना माउंटेन का एंगल क्या है, उसकी तपोन जो ऊपर बन रही है उसका टोटल एंगल क्या बन रहा है, ठीक है। तो ये जो एंगल है ये जितना ज्यादा कम होगा एम्प्लीफिकेशन ज्यादा होगा, जितना ये एंगल ज्यादा होगा आपका वो एरिया फ्लैट हो जाएगा। लेट्स सपोज यहाँ पे कितना एंगल है, ये वाला भी यहाँ पे अगर आप देखें तो कितना एंगल है, ये फी एंगल यहाँ पे भी तो होगा ना, यहाँ पे जो एंगल है ये है 180 डिग्री, ठीक है, ये 180 डिग्री है। आप देखेंगे ये यहाँ से देखें तो ये 90 इधर, 90 इधर, ये 180 डिग्री है, लेकिन यहाँ पे देखें, यहाँ पे हो सकता है ये 45 डिग्री हो। तो जितनी किसी माउंटेन की तकोन ज्यादा होगी, ठीक है, जितनी उसकी जो हिल है वो ज्यादा शार्प होगी, ठीक है, उतना ज्यादा वहां पे एम्प्लीफिकेशन ग्राउंड मोशन की ज्यादा होगी, मीन्स कि वो ज्यादा तेजी से ऊपर मूव करेगी, ठीक है। तो माउंटेन जितनी फ्लैट होगी उसकी एम्प्लीफिकेशन उसमें उतनी कम होगी ग्राउंड मोशन की। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। I guess you get it, right? If still you don't feel comfortable and you do not understand this concept, you are very welcome to ask me the questions, right? तो बस आपने ये याद रखना है कि क्योंकि ऊपर आपकी जो माउंटेन है जितनी ज्यादा शार्प उसकी पीक होगी, जितना ज्यादा उसका एंगल फाई कम होगा, उतनी ज्यादा वो, क्योंकि उसका वॉल्यूम कम होगा और उसकी थिकनेस कम होगी, तो उसको ज्यादा मतलब ज्यादा इजी होगा मूव करना। जैसे कि एक बिल्डिंग होती है, टॉल बिल्डिंग होती है, वो इजीली मूव कर सकती है, उसके टॉप फ्लोर इस तरह की जो बिल्डिंग है जिसका एंगल, जो माउंटेन है जिसका फी एंगल या फाई एंगल कम है, तो इट मीन्स कि वो ज्यादा उसके अंदर एम्प्लीफिकेशन होगी एज कंपेयर टू दी फ्लैट माउंटेन्स, ठीक है। तो ये आपने जो फैक्टर है इसको याद रखना है, 2π/φ, इस फैक्टर से ग्राउंड मोशन जो है वो एम्प्लीफाई हो जाती है। All right, so this is the experimental results, those are presented over here कि how ground motion is amplified because of the effect of the
रिजेस। अब रिजेस और डैम्स, डैम्स कैसे होते हैं? डैम्स भी आपके पास इसी तरह से क्रॉस सेक्शन देखें तो इसी तरह से आपको नजर आएंगे, ठीक है, इस तरह से। तो वो भी काइंड ऑफ माउंटेन ही लगेगी, स्मॉल आपको, जैसे तरबेला डैम है तो इसके फुट हिल पे जो ग्राउंड मोशन होगी वो कम होगी, यहाँ पे ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस पे भी वही टोपोग्राफिक इफेक्ट आएगा कि यहाँ पे ग्राउंड मोशन जो है वो एम्पलीफाई हो जाती है। तो इस तरह से अगर आप इसकी डिफरेंट हाइट्स के ऊपर मेजर करें ग्राउंड मोशन को, ठीक है, तो ये उसी तरीके से ये ग्राफ बना हुआ है, ये देखिए ये आपके पास एक माउंटेन है, ये देखिए ये उसका प्रोफाइल है, साइड से प्रोफाइल है, ठीक है, कि ये आपके पास पॉइंट बिल्कुल ग्राउंड के ऊपर है, ये थोड़ी सी हाइट के ऊपर स्लोप है उसकी, ये माउंटेन की, फिर उसके बाद ऊपर जाए थोड़ी स्लोप बढ़ जाएगी, यहाँ पे जाए तो स्लोप और हो जाएगी, तो ये अप टू 50 मीटर है, ठीक है, 50 मीटर इसकी हाइट है, ये बेस है और ये है इसकी क्रस्ट। तो ये रिज प्रोफाइल जो है इसको आप ऐसे करेंगे, इस पे अगर आप ग्राउंड मोशन को मेजर करें, लेट्स सपोज कि ग्राउंड मोशन यहाँ पे जो है ना वो मेजर होती है, फिफ्थ पॉइंट जो कि बेस पॉइंट है वो आपकी 0.4 से कम है, ठीक है, उसका जो एक्सेलरेशन है। फिर उसके बाद आप यहाँ जाते हैं तो ये 4 से ज़्यादा हो जाती है, फिर यहाँ जाते हैं तो ये थोड़ी सी और ज़्यादा हो जाती है, नंबर 2 पे जाते हैं तो ये आपकी 0.6 तक चली जाती है। लेकिन उसके बाद अच्छा यहाँ पे देखें कि पहले जो है ना हाइट जो एक सर्टन लेवल तक हाइट होती है वहां तक ये जो इंक्रीज है दिस इज नॉट वेरी शार्प, ठीक है, ये जो इंक्रीज है वो बहुत कम है, बट सर्टनली आफ्टर अ सर्टन डिस्टेंस, ये देखिए ये इतने डिस्टेंस के अंदर जब आपकी एलिवेशन जो है वो बहुत ज्यादा एकदम इंक्रीज कर जाती है, ठीक है, देन दिस राइज इज वेरी शार्प, सी दैट कि यहाँ पे जो वैल्यू आपके 0.6 के बराबर है और यहाँ पे आप इसकी वैल्यू जो है वो 1 तक पहुंच जाती है, ठीक है। इट मीन्स कि जितनी ज्यादा आपकी पीक शार्प होगी, एलिवेशन डिफरेंस जो है वो ज्यादा होगा, थोड़े डिस्टेंस के अंदर ग्रेडियंट उसका ज्यादा होगा या स्लोप का एंगल ज्यादा होगा, उतनी ज्यादा वो जो एम्पलीफिकेशन है उसमें वेरिएशन आएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप ये भी कह सकते हैं कि अगर यहाँ पे ग्राउंड मोशन 1 है, ठीक है, अगर 1 एम्पलीफिकेशन फैक्टर है लेट्स सपोज, तो यहाँ पे बेस के ऊपर जो है वो ग्राउंड मोशन का जो जो वैल्यू है वो कितनी होगी 0.4, उससे डबल से भी ज्यादा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि डबल से भी ज्यादा इफेक्ट होगा अगर आपके पास एक रिज है 50 मीटर हाइट, ठीक है, अगर इससे ज्यादा वाली है तो उसमें ज्यादा एम्पलीफिकेशन होगी, ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो है ना वो एक दूसरे ग्राफ के अंदर क्या है, पीक ट्रांसवर्स बेस एक्सेलरेशन, यहाँ पे बेस एक्सेलरेशन गिवन है, उसके बाद पीक ट्रांसवर्स क्रस्ट एक्सेलरेशन, कि बेस एक्सेलरेशन और क्रस्ट एक्सेलरेशन के दरमियान ये ग्राफ है। बेस से क्या मुराद है, ये चीज कि ये बेस है और ये आपके पास है क्रस्ट, हाईएस्ट एलिवेटेड पॉइंट, उसको हम क्रस्ट कहेंगे, ठीक है। तो ये एक्सपेरिमेंटल डेटा है आपका जिसकी बेस के ऊपर आप ये कह सकते हैं कि बेस एक्सेलरेशन की अगर वैल्यू ये है तो जो क्रस्ट है उसकी वैल्यू कितनी होगी, ठीक है। तो लेट्स सपोज बेस एक्सेलरेशन आपका 0.2 है, बेस एक्सेलरेशन आपका है 0.2, तो आप इससे लाइन एक्सटेंड करें, अगर ये जो रेड लाइन है ये दिस इज अ काइंड ऑफ ट्रेंड लाइन, एवरेज लाइन है, ये रिलेशनशिप है बिटवीन दी पीक ट्रांसवर्स क्रस्ट एक्सेलरेशन और आपके पास बेस एक्सेलरेशन। अगर आपका बेस एक्सेलरेशन 2 है तो आप इस लाइन को ऊपर लेके जाएं, तो स्ट्रेट लाइन लगाएं आप और उसके बाद इसको इधर एक्सटेंड कर दें, तो क्रस्ट अगर बेस एक्सेलरेशन 0.2 है तो क्रस्ट एक्सेलरेशन कितना होगा 0.28 ऑलमोस्ट। उसके बाद अगर आपके पास बेस एक्सेलरेशन 3 है, ठीक है, तो यहाँ पे जाएं और यहाँ से बेस एक्सेलरेशन आप इधर से पढ़ लेंगे क्रस्ट पे कितना होगा, तो क्रस्ट पे ये 0.4 से ऊपर चला गया। सिमिलरली बेस एक्सेलरेशन आपका यहाँ पे इतना है तो क्रस्ट 0.4 है, तो क्रस्ट एक्सेलरेशन आपका 0.6 है, इससे भी ज्यादा। अगर आप एग्जैक्टली इसको ड्रॉ करें तो ये वैल्यूज थोड़ी सी आगे हो सकती है, आगे पीछे हो सकती है, ठीक है। लेकिन कहने का मतलब ये है कि बेस एक्सेलरेशन से हमेशा जो क्रस्ट एक्सेलरेशन है, माउंटेन की जो टॉप का एक्सेलरेशन होता है वो ज्यादा होता है, क्योंकि उसमें ग्राउंड एम्पलीफिकेशन होती है। वजह क्या है, क्योंकि साइडों पे कंफाइनमेंट नहीं है, साइडों पे एयर है या आपके पास वैक्यूम है, तो वो आपको फ्री जो है वो मीडियम ऐसा मीडियम है जो रेजिस्टेंस नहीं देता, कंफाइनमेंट नहीं देता, जिसकी वजह से क्या होगा कि एम्पलीफिकेशन हो जाती है ग्राउंड मोशन की और वो ज्यादा मूव करता है, ठीक है।
बिल्डिंग जो है वो या जो माउंटेन है वो ज्यादा मूव करेगी अगर वो एयर के अंदर जितना उसका एक्सटेंडेड पार्ट होगा, राइट। All right, so this was the discussion on the local site effects, how the local site can affect on the strong ground motion। कि एक ही तरह की मोशन जो है डिफरेंट मटेरियल्स होंगे तो वहां पे वो मोशन डिफरेंटली एम्पलीफाई होगी। बेसिक मकसद ये था कि यहाँ पे ग्राउंड एम्पलीफिकेशन हो जाती है, ठीक है, लोकल साइट कंडीशंस की बेस के ऊपर। तो वो लोकल साइट कंडीशंस को आपने अंडरस्टैंड जरूर करना है, ठीक है। उसके लिए हमने थोड़ी छोटी सी ये डिस्कशन की है जिसको मैंने बहुत कोशिश की है कि इसको ज़रा नॉन टेक्निकल ही रखूं ताकि आप लोगों को ज़्यादा समझ आए। ऑल राइट, सो नाउ वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट द बिल्डिंग कोड्स। बिल्डिंग कोड्स आर अ काइंड ऑफ गाइडलाइंस। कोई भी आपने काम करना हो, राइट, उसके कुछ एसओपीज होते हैं। तो वो जो एसओपीज जब आप फॉलो करते हैं तो वो काम ठीक होता है। अगर आप एसओपीज को फॉलो नहीं करेंगे तो काम ठीक नहीं होगा, राइट। जैसे कि आजकल जो कोरोना वायरस की जो पैंडेमिक है, तो इस पैंडेमिक से आपने किस तरीके से बचना है, देयर आर एसओपीज, राइट। आपने एसओपीज को फॉलो करना है। अगर आप एसओपीज फॉलो कर रहे हैं तो इंशाल्लाह आप बचे हुए होंगे इस वबा से। लेकिन अगर आप एसओपीज फॉलो नहीं करेंगे तो वो लोग जो हैं वो इसका शिकार हो सकते हैं, राइट, देयर इज अ चांस। तो ये गाइडलाइंस है। सिमिलरली जब आपने कोई घर बनाना है तो घर बनाने के लिए कोई गाइडलाइंस होती हैं। यूजुअली हम लोग गाइडलाइंस फॉलो नहीं करते। बहुत सारे घर हमारे जो है ना वो खुद ही हमने बनाए होते हैं एज पर रिक्वायरमेंट। आप उसको बिल्डिंग को बड़ा कर लेते हैं, लंबा कर लेते हैं और स्टोरीज पे स्टोरीज बनाए जाते हैं। जिसकी स्पेशल एग्जांपल कराची में जो रिसेंटली जो बिल्डिंग्स गिरी हैं वो इसी वजह से गिरी हैं कि आपने प्रॉपरली स्ट्रक्चर को डिजाइन ही नहीं किया। अब जैसे जैसे आपके बच्चे ज्यादा हो रहे हैं आप कहते हैं जी ऊपर एक और स्टोरी बना लें, फिर उसके बाद एक और स्टोरी बना लें। लेकिन आप ये नहीं सोच रहे यार कि आपकी वर्टिकल एक्सपेंशन इस तरीके से नहीं होनी चाहिए जिससे आप कर रहे हैं। आप किसी से पूछ नहीं रहे, मिस्त्री को बस बता रहे हैं कि ये हमने करना है। मिस्त्री जो है वो ज़ाहिर है कि नॉन टेक्निकल बंदा है, वो आपको सही मशवरा नहीं दे सकता। और नीचे चाहे आपकी फाउंडेशन वीक हो, ऊपर आप स्ट्रक्चर खड़ा करे जा रहे हैं, उसी फाउंडेशन के ऊपर लोड बढ़ा रहे हैं। फिर क्या होता है, जरा सी वाइब्रेशन होती है तो स्ट्रक्चर गिर जाता है, ठीक है। तो देर आर सर्टन प्रोटोकॉल्स and SOPs and guidelines available for the construction of the houses and also for the buildings। तो जिस तरह से आप घर की कंस्ट्रक्शन करते हैं आप उसके SOPs अलग होते हैं। इसी तरह से जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स हैं उनके SOPs अलग होते हैं। इसी तरह से आपके पास जो रोड्स हैं, जो हाईवेज हैं, जो आपके पास ब्रिजेस हैं, उनके भी SOPs अलग से होते हैं। तो वो जो SOPs होते हैं उनको हम बिल्डिंग कोड्स कहते हैं, ठीक हो गया। सिमिलरली जो एक होते हैं जेनेरिक बिल्डिंग कोड्स कि अगर आपके पास अर्थक्वेक का मसला नहीं है, आपका एरिया जो है वो अर्थक्वेक फ्री जोन है, तो आप फिर उसमें जो नॉर्मल बिल्डिंग कोड्स उसको यूज करते हैं। सिमिलरली अगर आपका एरिया जो अर्थक्वेक प्रोन है, वहाँ पे अर्थक्वेक ज्यादा आते हैं, फिर आपने क्या करना है कि बिल्डिंग कोड्स ही फॉलो करने हैं। लेकिन उन बिल्डिंग कोड्स में आपने अर्थक्वेक के हवाले से जो गाइडलाइंस है उसको भी फॉलो करना है। इन एडिशन आपने अर्थक्वेक का फैक्टर भी उसके अंदर डालना है, राइट। तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप के कोड्स अवेलेबल हैं, वर्ल्ड वाइड बिल्डिंग कोड्स अवेलेबल हैं। और वो जो कोड्स हैं उसकी बेस के ऊपर आप स्ट्रक्चर्स को डिजाइन करते हैं। पाकिस्तान के अभी इस तरह के बिल्डिंग कोड्स अवेलेबल नहीं हैं, ठीक है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो जो इंटरनेशनली इस्टेब्लिश कोड्स हैं उसी को फॉलो करके तो अपने बिल्डिंग जो है वो उसको बनाते हैं। लेकिन जनरली उसको फॉलो पाकिस्तान में भी नहीं किया जाता, अंदाजे से सब कुछ किया जाता है, ठीक है। आजकल थोड़ी सी अवेयरनेस ज़्यादा है, जब से अर्थक्वेक जो है ना वो आया था 2005 में, उसके बाद ज़्यादा अवेयरनेस हुई है कि आपने प्रॉपरली स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है तो उसके अंदर अर्थक्वेक का इफेक्ट लेके आना है। उससे पहले कोई इस तरह का जो है वो कंसिडरेशन नहीं होती थी, ठीक हो गया। तो बिल्डिंग कोड्स के अंदर क्या है, कंसिडरेशन ऑफ अर्थक्वेक एंड अदर इफेक्ट्स, consideration of earthquake and other effects in the design of new structure is mandated by modern building codes, ठीक है, which may be adopted as a law by various city, county and state governments।
बाहर तो इसको लॉ की फॉर्म में प्रेजेंट किया जाता है और उसको एक्सेप्ट किया जाता है कि ये, जैसे हम किसी सोसाइटी में घर बनाते हैं तो वो बाय लॉज उन्होंने बनाए होते हैं, इस तरह से जो अर्थ फिक्स से रिलेटेड जो बिल्डिंग कोड्स हैं वो बाय लॉज की शक्ल उसको इख्तियार करनी चाहिए, उसको जो है वो मतलब जैसे हम बाकी लॉ को फॉलो करते हैं उससे वो भी लॉज होंगे जो कि ना हर स्ट्रक्चर के ऊपर इम्प्लीमेंट होने चाहिए। घर बनाए या बिल्डिंग बनाए, आपने क्या करना है जो है वो उन एसओपीज को फॉलो करना है, तो ये इस तरह के बाय लॉज की फॉर्म में इसको इम्प्लीमेंट करना चाहिए, राइट। So there are different type of code just like a uniform building code. एक है यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड UBC, ठीक है। यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड एक टाइप के कोड्स हैं, इस तरह से ASCE यूरो कोड्स हैं, ठीक है। और उसके बाद आपके पास जो है ना इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड्स भी हैं, ठीक है। NEHRP जो है ना वो रिकमेंडेशंस हैं। तो इस तरह से डिफरेंट टाइप के स्टैंडर्ड्स अवेलेबल हैं। IBC जो है वो इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड है, जो है तो उसमें आप उसको अपने एरिया पे लोकल पाकिस्तान के ऊपर भी आप उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, पर प्रोवाइडेड विद दी लोकल साइट कंडीशन जो उसके साथ मैच करती हैं उनकी प्रॉपर्टीज के साथ। तो कोड क्या करते हैं, कोड ये करते हैं कि प्रोवाइड मिनिमम स्टैंडर्ड्स प्रोवाइड करते हैं टू सेफ गार्ड लाइफ और लिम्ब, हेल्थ, प्रॉपर्टी एंड पब्लिक वेलफेयर बाय रेगुलेटिंग। किस तरह से बिल्डिंग कोड्स आपको सेफ गार्ड करते हैं, बाय रेगुलेटिंग एंड कंट्रोलिंग द डिजाइन, कि अगर आप उसके मुताबिक डिजाइन बनाते हैं फिर उसके मुताबिक कंस्ट्रक्शन भी करते हैं। अगर डिजाइन आपने बहुत अच्छा कर लिया लेकिन कंस्ट्रक्शन के अंदर नाकिस मटेरियल यूज किया है, देन यू कैन नॉट डू दैट, राइट। आपका स्ट्रक्चर बेटर परफॉर्म नहीं करेगा। कंस्ट्रक्शन, quality of materials, use and occupancy, location and maintenance of the building. So these are the things, those are given by the building codes. Building codes आपको instruct करता है कि आपका जो structure है वो अगर उसको अर्थक्वेक से रिलेटेड डैमेज होता भी है तो वो कोलैप्स नहीं करना चाहिए। ये मिनिमम सेफ गार्ड है, ठीक है, कि वो कोलैप्स नहीं हो, उसके अंदर नॉन स्ट्रक्चरल और स्ट्रक्चरल डैमेजेस भी ज़्यादा नहीं हो। अगर आप उसको डिज़ाइन करें इस तरीके से कि उसमें बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करते हुए डिज़ाइन करें, कंस्ट्रक्शन में भी कोड्स को फॉलो करें, मटेरियल आप क्वालिटी वाला यूज़ करें, ठीक है, और उसके बाद जो स्ट्रक्चर है जिस मकसद के लिए बनाया गया है आप उसको उसी मकसद के लिए भी यूज़ करें, ठीक है। लेट्स सपोज अगर आपका जो घर है डबल स्टोरी घर है, ठीक है, और आपने उसको 5-7 बंदों के लिए बनाया, डिजाइन किया, लेकिन अगर आप छत के ऊपर जो है वो 500 बंदा चढ़ा दें, ठीक है, तो क्या होगा, वो 500 बंदा चढ़ जाएगा, स्ट्रक्चर आपका स्ट्रॉन्ग था बेहतरीन, लेकिन क्या होगा कि वो 500 बंदा जो है ना वो एक टाइम ऐसा आएगा कि स्ट्रक्चर गिर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पर्पस था घर का वो ये था कि कुछ लोग वहां पे रहेंगे, हर वक्त 500 बंदा वहां नहीं होगा, ठीक है। तो ये सारी चीजें कंसीडर करके आप जब स्ट्रक्चर को डिजाइन करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं, और उसके बाद उसका जो यूज है उसको भी प्रॉपरली करते हैं जिसके मकसद के लिए वो बना है, देन क्या होगा कि वो आपका जो स्ट्रक्चर है वो आपको सेफ्टी प्रोवाइड करेगा, ठीक है। तो इस तरह से डिफरेंट कोड्स आपके डिफरेंट टाइप के स्ट्रक्चर्स के लिए अवेलेबल होते हैं, ठीक है, जिनको हमने फॉलो करना है। और उस कोड्स के अंदर ये भी एक्सप्लेनेशन होती है कि आपका जो स्ट्रक्चर रॉक पे बन रहा है या वो सॉइल पे बन रहा है। सॉइल पे बन रहा है तो सॉइल नीचे कौन सी है, सैंड है, क्ले है, सिल्ट है, या उसका मिक्सचर है, ग्रेवल्स है, क्या है, उसके रिलेटेड हर चीज के लिए जो है वो आपको जो है वो ये जो है वो गाइडलाइंस जो है वो प्रोवाइड करते हैं कोड्स में, ठीक है। All right. So now there are different parameters, like we are talking about the building codes, और बिल्डिंग कोड जो है वो हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमने जो है ना वो डिज़ाइन मोशन पैरामीटर्स निकाल के उसके ऊपर स्ट्रक्चर को डिज़ाइन करना है, ठीक है। तो बिल्डिंग कोड्स हमें गाइड करेंगे, ठीक है। हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, हैजर्ड मिटिगेशन कर रहे हैं, और हैजर्ड पहले हम हैजर्ड असेसमेंट कर रहे हैं, उसके बाद हम हैजर्ड मिटिगेशन कर रहे हैं फ्यूचर के लिए जो स्ट्रक्चर्स हमने डिज़ाइन करने हैं।
तो सबसे पहले हमने जो है ना कुछ तो हमने डिस्कस कर लिए हुए हैं। जो साइट स्पेसिफिक एनालिसिस है, डिज़ाइन डिज़ाइन पैरामीटर कहाँ से आते हैं, साइट स्पेसिफिक एनालिसिस से आते हैं, या फिर आप बिल्डिंग कोड्स आपको डिज़ाइन पैरामीटर्स देते हैं, ये भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो साइज्मिक हैजर्ड एनालिसिस भी आपको डिज़ाइन पैरामीटर्स देते हैं, ठीक है। ये हमने क्या डिस्कस किया हुआ है, DSHA एंड PSHA, दोज आर एक्चुअली साइट स्पेसिफिक एनालिसिस, एक साइट के ऊपर आप एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो वो हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया हुआ है। तो वहाँ से हमारे पास क्या आता है, एक्सेलरेशन आ जाता है, अर्थक्वेक जो है किस मैग्नीट्यूड का कंट्रोलिंग अर्थक्वेक है, वेलोसिटी ले सकते हैं, उसके बाद आप उससे फ्रीक्वेंसी ले सकते हैं। ये सारे पैरामीटर्स आपके साइट स्पेसिफिक भी होते हैं, लेकिन हर स्ट्रक्चर के लिए आप साइट स्पेसिफिक एनालिसिस परफॉर्म नहीं करते। उसके लिए फिर आप क्या करते हैं, कोड्स की मदद लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लाहौर में कुछ स्ट्रक्चर बनाना है तो इसके लिए आप बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करेंगे। उसके बाद आप ये देखेंगे कि यहाँ पे आपका साइज्मिक हैजर्ड जो है वो कितना कितना मतलब उसका पोटेंशियल कितना है, एक्सेलरेशन कितना है, उसकी बेस के ऊपर आप बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करके डिज़ाइन कर सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास स्ट्रक्चर ज़्यादा सेंसिटिव है, जैसे डैम्स हैं या न्यूक्लियर रिपोजिटरी है या कुछ और इस तरह के स्ट्रक्चर हैं, तो उसके लिए फिर आप साइट स्पेसिफिक एनालिसिस भी परफॉर्म करेंगे, ठीक है। So we got building codes like UBC, Unified मेरे ख्याल में यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड, यहाँ पे यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड, ठीक है। तो ये 1927 में कोड्स बने थे फर्स्ट टाइम। जो आपके ये जो यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड्स हैं अमेरिका में बने थे 1927 में, क्योंकि उससे पहले हर अपने एक्सपीरियंस पे लोग कंस्ट्रक्ट करते थे, बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स बनाते थे। तो इसके बाद ये कोड सामने आ गए। कोड जो है उन्होंने, क्योंकि 1920s 30s में हाई राइज बिल्डिंग्स बनाने का जो एक ट्रेंड था वो ज्यादा होता जा रहा है, ठीक है। तो इसलिए फिर उन्होंने कोड्स बना दिए कि आप सर्टेन रेगुलेशंस को यूज करें और उसकी बेस के ऊपर यू कैन डिजाइन योर स्ट्रक्चर, राइट। सो ये यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड 1997 तक चले, इसके डिफरेंट रिवीजन्स आती गई, ठीक है। रिवीजन्स के बाद फिर ये इसको रिप्लेस कर दिया IBC ने, इसको रिप्लेस किया IBC ने, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड, जो कि आपके 2000 से स्टार्ट हुए और 2003 3 साल के बाद इसकी अपडेशन आती है और 2020 में जो है इसकी फर्दर अपडेशन आएगी। अपडेशन क्यों आती है, क्योंकि जैसे जैसे आपका डाटा इंक्रीज हो रहा है, अर्थक्वेक से रिलेटेड भी डाटा, बिल्डिंग से रिलेटेड भी डाटा, उसकी परफॉर्मेंस का डाटा, तो वो जो बिल्डिंग जो कोड्स हैं वो भी आहिस्ता आहिस्ता इम्प्रूव हो रहे हैं, राइट। Similarly, you have the other codes, NEHRP, ठीक है, नेशनल अर्थक्वेक हैजर्ड प्रोग्राम समथिंग, ये है ये भी US का ही है। तो इनके 1966 से 2015 तक के अभी तक कोड्स आए हैं, ठीक है। प्रोविजन, इसको डिजाइन प्रोविजन भी कहते हैं। IBC आपका जैसे बता दिए। इसके अलावा ASCE, एसोसिएशन ऑफ इसका है मेरे ख्याल में एसोसिएशन ऑफ क्या कहते हैं सिविल इंजीनियर, सॉरी अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स। ASC क्या है, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ सिविल इंजीनियर्स, ठीक है। इनके भी अपने कोड्स हैं, ठीक है, वो कोड्स भी अवेलेबल हैं। तो ये जो कोड्स हैं ये इनमें कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है, प्लस माइनस थोड़ा बहुत फर्क होगा, लेकिन दे आर इक्वली गुड, राइट। तो जो हम अगर अपने हिसाब से यूज़ करेंगे तो हम IBC यूज़ करेंगे, इंटरनेशनल बिल्डिंग कोड जो है वो, क्योंकि वो उनकी जो एक्सेप्टेंस है वो ग्लोबल है, राइट। तो डिजाइन मोशन पैरामीटर्स कौन से होते हैं, वी ऑलरेडी नो दैट कि डिजाइन मोशन पैरामीटर्स में आपके पास PHA, PHV, पीक हॉरिजॉन्टल एक्सेलरेशन, PHV प्रीडोमिनेंट टाइम पीरियड, जिसे आप TP भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आपके पास है रिस्पॉन्स स्पेक्ट्रम, जो कि आप ग्राउंड साइट स्पेसिफिक एनालिसिस करते हैं वहां से आता है, और अर्थक्वेक ड्यूरेशन, जिसे आप D भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दीज पैरामीटर्स इन डिटेल, वी ऑलरेडी नो दीज पैरामीटर्स। तो इसको यूज करके आप जो है वो क्या करते हैं, जो है क्या कहते हैं उसे, अर्थक्वेक रेजिस्टेंट डिजाइन जो है वो करते हैं स्ट्रक्चर्स का। ऑलराइट, सो यूनिफॉर्म जो बिल्डिंग कोड्स हैं इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे कि यूनिफॉर्म बिल्डिंग कोड जो है वो एक्चुअली पहले तो ये कि इसका पर्पस क्या है। तो UBC इज बेस्ड, आई मीन जो भी है उसको क्या कहते हैं वो, कि सेज दैट स्ट्रक्चर
structures designed in conformance with the blue book recommendations. ब्लू बुक, इसको आप ब्लू बुक भी कहते हैं, जो बिल्डिंग कोड्स होते हैं ये ब्लू बुक की तरह, मतलब जो एक ब्लू बुक मीन के मतलब आप कह दें कि एक स्टैंडर्ड क्राइटेरिया कह लें, या एक ऐसी बुक जिसमें हर चीज़ जो है वो वेल डिफाइंड है और एक्यूरेटली जो है वो डिफाइंड है हर चीज़, ठीक है, उसमें गलती की गुंजाइश कम है, उसको ब्लू बुक भी कह सकते हैं, स्टेट ऑफ द आर्ट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो ये कहते हैं कि अगर आप जो स्ट्रक्चर्स डिजाइंड इन कन्फॉर्मेंस विद द ब्लू बुक शुड इन जनरल बी एबल टू व्हाट, नंबर वन ये है कि आपका जो स्ट्रक्चर है उसको क्या होना चाहिए, resist a minor level of earthquake ground motion, कि जो माइनर लेवल के earthquake ground motion है उसको रेजिस्ट करे विदाउट डैमेज, ठीक है, एक तो पहले ये कंडीशन है। दूसरी, रेजिस्ट टू मॉडरेट लेवल earthquake, मॉडरेट लेवल earthquake को भी रेजिस्ट करे, ठीक है, उसकी ग्राउंड मोशन को विदाउट स्ट्रक्चरल डैमेज, बट पॉसिबली एक्सपीरियंस सम नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज, ठीक है। तो ये दूसरी कंडीशन, पहले ये कि अगर माइनर अर्थक्वेक आए तो वो कुछ भी ना हो, कोई डैमेज प्रोड्यूस ना हो, उसको वो उसके अगेंस्ट वो स्ट्रक्चर जो है वो बेहतर परफॉर्म करे, राइट, रेजिस्टेंस दे। अगर कोई मॉडरेट लेवल का अर्थक्वेक आता है तो उसमें क्या करे कि स्ट्रक्चरल डैमेज ना आए। स्ट्रक्चरल डैमेज का मतलब ये कि उसके बीम्स, पिलर्स, उसके जो फाउंडेशन है, तो उनके जो जॉइंट्स हैं या बाकी चीज़ें हैं तो उनके अंदर क्रैक्स नहीं आने चाहिए, वो स्ट्रक्चर जो है उसके अंदर कुछ इस तरह की डेफॉर्मेशन नहीं आनी चाहिए, ठीक है। लेकिन बट पॉसिबली एक्सपीरियंस सम नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज, नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज हो सकता है कि ऐसे पार्ट्स बिल्डिंग के, जैसे कि आपने वो जो क्या कहते हैं उसे कि आउटसाइड बाउंड्री है, ठीक है, या कोई जैसे क्या कहते हैं उसे चिमनीज हैं, या आपके पास जो किसी कमरे के अंदर या ऑफिस के अंदर शेल्फ्स हैं वो गिर सकती हैं अगर उसको आपने प्रॉपरली टाई अप नहीं किया, तो ये नॉन स्ट्रक्चरल एलिमेंट्स हैं। खिड़कियों को डैमेज प्रोड्यूस हो सकता है, डोर्स जो हैं उसकी वो थोड़े से डिफॉर्म हो सकते हैं, राइट। तो ये नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज वहां पे उसको कम से कम हो, यहाँ पे भी इस लेवल पे भी कैजुअलिटीज तो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बिकॉज ऑफ द अर्थक्वेक, राइट। नंबर थर्ड क्या है, रेजिस्ट अ मेजर लेवल अर्थक्वेक, अगर मेजर लेवल का अर्थक्वेक आता है तो उसको वो रेजिस्ट करे, ठीक है, हैविंग एन इंटेंसिटी इक्वल टू द स्ट्रॉन्गेस्ट एवर ईदर एक्सपीरियंस अर्थक्वेक, और फोरकास्ट फॉर द बिल्डिंग को अगर उसी तरह का अर्थक्वेक आ जाए जो कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है जिसके ऊपर वो डिजाइन किया है, तो फिर उसमें क्या करे, वो रेजिस्ट करे, ठीक है, रेजिस्ट इस तरह से करे कि कोलैप्स नहीं हो, उसके अंदर स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो जाए, मतलब ये कि कुछ मतलब उसके जो जॉइंट्स हैं या कुछ उसके बीम्स या पिलर्स को डैमेज भी प्रोड्यूस हो जाए, लेकिन बिल्डिंग को कोलैप्स नहीं करना चाहिए। ये वो चीजें हैं जो आपको बिल्डिंग कोड्स आपको गाइड करते हैं कि अगर आप उसके अकॉर्डिंगली बिल्डिंग्स को बनाएंगे तो एटलीस्ट बिल्डिंग गिरेगी नहीं, कोलैप्स नहीं करेगी। कोलैप्स नहीं करती तो इट मींस कि कैजुअलिटीज होने के चांसेस आर मिनिमम, एंड देयर विल बी सम अदर लॉस, बिल्डिंग को लॉस पहुंच गया है, मतलब डैमेज प्रोड्यूस हो गया है, स्ट्रक्चरल नॉन स्ट्रक्चरल डैमेज भी हो गया है, लेकिन स्टिल जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो है लाइफ की सेफ्टी, ठीक है। अगर कैजुअलिटीज नहीं होती, अल्लाह ना करे ऐसा कोई आता है जहाँ पे बहुत ज्यादा जो है वो स्ट्रॉन्ग ग्राउंड मोशन प्रोड्यूस होती है, तो अगर कैजुअलिटीज नहीं होती तो दिस इज एक्चुअली द बिगर थिंग। तो ये तीन तरह की सिचुएशन है जिसके अंदर एक स्ट्रक्चर जब आप एज पर द ब्लू बुक आप यानी कि बिल्डिंग कोड्स के मुताबिक डिजाइन करते हैं, तो ये तीनों प्रॉपर्टीज आप इसको कंसीडर करें उस स्ट्रक्चर के डिजाइन करते वक्त, ठीक है, और बिल्डिंग कोड्स को फॉलो करके सारा डिजाइन करेंगे, तो सिचुएशन ये होगी कि डैमेज जो है वो मिनिमम प्रोड्यूस होगा, ठीक है। सो दीज expectations illustrate the basic philosophy of earthquake resistant structural design, ठीक है। So as the commentary goes on to state, as it would in most cases be economically prohibitive to design buildings to remain elastic for all levels of earthquake ground motions, ठीक है। तो ये आपके पास जो है वो क्या कहते हैं उसे
कि हम बिल्डिंग को अर्थक्वेक रेजिस्टेंट इस सेंस में बनाएं कि माइनर अर्थक्वेक आए तो वो कैसी हो, मॉडरेट लेवल की आए तो वो कैसी हो, और अगर आपके पास मेजर अर्थक्वेक आए तो वो किस तरह से रिस्पॉन्ड करे। ठीक है। सो इन यूबीसी देयर आर टू बेसिक अप्रोचेस। ये तो हमने पढ़ लिया कि ये बिल्डिंग कोड्स है। अब इसके अप्रोचेस क्या है, हम उसको भी डिस्कस करते हैं। ठीक है। So UBC allows two basic approaches to earthquake resistant design of buildings: a static approach and a dynamic approach. तो दो तरह की अप्रोचेज हैं, स्टैटिक अप्रोच है और एक है डायनामिक अप्रोच। तो ये हम नेक्स्ट एपिसोड जो है इस टुडेज जो आपका लेक्चर है उसमें हम इसको यहाँ से फर्दर डिस्कस करते हैं। ठीक है। अब तक यहाँ के लिए इतना ही है, लेकिन नया जो लेक्चर है उसको मैं अभी अपलोड करूंगा, तो उसमें आपने क्या करना है कि यहाँ से जो ऑनवर्ड जो डिस्कशन है वो उसके अंदर इंक्लूड होगी, तो आप उसको भी सुनिएगा। थैंक यू।